everyone, welcome back. I'm nutritionist Azra Khan, and in today's video, I'm going to be rewinding a little about my fitness journey, about my weight loss journey, and the learnings that I have learned over the period of 7 years of my weight loss journey. Yes, it has been 7 years of me losing that weight, and I have still been able to maintain it. Quite often थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता होगा, but other than that I'm very much healthy, touch wood. And I have, in this journey of 7 years of maintaining my health to the optimal level, have learned a lot. So today I'm going to be sharing with you 7 things I learned in 7 years to build a sustainable lifestyle for myself. Maybe अगर आप weight loss journey कर चुके हैं अपनी, या मेंटेनेंस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या इस चीज से परेशान है कि वेट लॉस के बाद आप क्या करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है. फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो हु आई एम, हेलो, I am a wellness coach and a nutritionist who help people reach their fitness goals. If you want to get personal consultations and personal diet plans from me, you can reach out to me through this link. यहाँ पे मेरी टीममेट मिलेंगी आपको, जो आपको सारी गाइडेंस और असिस्टेंस देंगी कि कैसे आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन इन कर सकते हैं. पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आती हूँ इन सिंपल लैंग्वेज, ताकि एक लेमन को जो इंपॉर्टेंट चीजें समझने की जरूरत है उनकी हेल्थ के लिए, वो आप इजीली समझ पाओ. सो अगर आप इस तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड रहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट विल हेल्प मी ग्रो एंड इट विल हेल्प मी नो दैट यू नीड दिस काइंड ऑफ कंटेंट. एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी इन 2015 and I was somewhere around 79-80 kgs, close to 80 kgs, exactly 80 पे काटा नहीं हुआ था, but होने ही वाला था if मैंने ध्यान ना दिया होता. And for a general overview, I am someone who is very petite, so I am 5'1". So for that kind of height, 79-80 kgs is a lot of weight, unhealthy weight gain. I gained all that weight in college because of overeating. So no, I am not going to blame my genetics or my hormones for it. It was just my poor lifestyle choices जिसकी वजह से मैंने अपना weight put on किया था. And it took me somewhere around 7-8 months to lose all of the weight that I gained. And it took me over a year to lose the last 4-5 kgs as well, because the last 4-5 kgs is very difficult to lose. तो उस वक्त जब मैं अराउंड 20 kgs ऑफ वेट लॉस कर चुकी थी, तो मेरी कोई तमन्ना नहीं थी और ज़्यादा वेट लूज करने की. आई वॉज हैप्पी वेयर आई वॉज एट 60. पर होता है, वो थोड़ा सा माइंडसेट में होता है कि आई वॉन्ट टू गो अंडर 50s, एंड देन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद आई अचीव माई लास्ट फ्यू kgs ऑफ वेट लॉस एज वेल, विच टुक मी अनदर ईयर फॉर दैट मैटर. सो लास्ट फ्यू kgs लूज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. I tell this to my clients also, जो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं when they hit weight loss plateau, that it is normal, it is okay. Our body needs time to adapt to the new body that you have given it, and give that time. Of course, मुझे 1 साल इसलिए लगा because उस टाइम पे मैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन भी कर रही थी. So I did not invest a lot of time on my fitness, but the good thing is that I was able to maintain all the weight that I lost for about 7 years. So 2015-2022 हो गया है. मैंने अपनी जर्नी जैन में स्टार्ट की थी in 2015, and right now in Feb first week I have completed exactly 7 years of my starting where I started losing weight. इस जर्नी में कोई भी ऐसा वक्त या ऐसा मोड़ नहीं आया जिसमें मैंने सडनली बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हो, because I did it the right way, the sustainable way. और 2015 के पहले भी मैंने बहुत बार अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी. आई थिंक 10 or 11 times, एंड आई यूज टू गिव अप इन द मिडिल बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन कर लेती थी अपने आप को कि एक दिन मैं खुद ही थक जाती थी. और उसके बाद आई यूज टू से दैट मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज, एंड एज अ कॉलेज किड हु वॉन्ट्स टू बी फॉलोइंग अ डाइट जिसमें सैलड है और हेल्दी इतना खाना है, बिकॉज हमारे दोस्त, हमारा कैंटीन, सब कुछ हमें ऐसे से बुलाता है, एंड वी डोंट लाइक बीइंग सेक्लूडेड कि मुझे ऑड वन आउट नहीं दिखना है लोगों में कि मैं नहीं खाऊंगी. एंड आई वॉज द बॉडी टाइप जिसको आप लोगों ने अक्सर ये फ्रेज सुना होगा, करा देता है, हवा भी लग जाती है हमें. तो उस तरह का बॉडी टाइप है मेरा. आई एम एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप, एंड आई गेन वेट वेरी इजिली. आई डू लूज वेट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ईजिली, बट
To maintain that weight, it takes a lot of efforts for me, and that is what I learned. The first thing in my 7 years of maintenance, that a sustainable plan is a long lasting plan. अगर मुझे क्विक फिक्सेस चाहिए तो वो क्विक फिक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज एज इट सेज इट इज क्विक फिक्स. तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है मेरा, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं, कि इस टेम्पटेशन में कि लूज 10 kgs इन 10 days या लूज फलाना ढिमकाना इन हाउ मेनी डेज, आई डोंट नो, अगर आप इस चीज पे अट्रैक्ट होकर अपनी जर्नी उस तरीके से शुरू करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट. क्योंकि उस वीडियो में ये नहीं बताया जाता कि 10 दिन बाद क्या हुआ. उस वीडियो में ये नहीं बताया जाता कि कितना ड्रास्टिकली हमारा शुगर लेवल लो हो जाता है जब हम इतना कम खाते हैं. उस वीडियो में ये नहीं बताया जाता कि क्या हमारे माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है जब हम इतना कम खाते हैं कि हमारा वजन इतनी जल्दी कम हो जाए. सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ बिफोर फॉलोइंग समथिंग, कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या क्या ये मेरे लिए हेल्दी है इन ऑर्डर टू फॉलो इट. क्योंकि वजन हम कम क्यों कर रहे हैं? सेहतमंद रहने के लिए, ना कि 10 बीमारियां और लेने के लिए. इस चीज को सोचिए एंड तब ही कोई भी अप्रोच अपने वेट लॉस जर्नी के लिए अडेप्ट करिए. फॉर मी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई गाइड पीपल फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, जिसका मतलब है ऑन एन एवरेज इन द बिगिनिंग ऑफ योर वेट लॉस जर्नी यू कैन लूज 3 to 4 kgs a month, but over a period of time you will lose 2 to 3 kgs a month and then maybe 1 or 2 kgs a month, and that is fine. जब तक आपकी ब्लड वर्क इज सेइंग दैट यू आर परफेक्ट, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपकी नींद, आपकी स्किन, सब कुछ अच्छा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. So one thing that I learned in the 7 years experience is sustainable goals and sustainable lifestyle for permanent results. Next thing is that you cannot compensate for workout. For the longest time मुझे लगता था कि abs are made in the kitchen, right? तो हम डाइट से अपना वेट लॉस कर सकते हैं. जब तक मैंने न्यूट्रिशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में इतना नहीं पढ़ा था, दो आई वॉज अ बायो स्टूडेंट सिंस द बिगिनिंग, बट स्टिल मैं न्यूट्रिशन में इतना इन डेप्थ नहीं गई थी. तब तक मुझे ये लगता था कि सिर्फ किचन से या सिर्फ डाइट से मेरा काम चल जाएगा. बट द ऑनेस्ट एंड द हार्ड ट्रूथ इज दैट 25% ऑफ वॉट योर बॉडी लुक्स लाइक इज वर्कआउट, राइट? तो आप उस 25% को इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ, खाना, सही खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर आप कैलोरी डेफिसिट में जब तक रहोगे तभी तक आपका वेट लूज होगा. बट देयर कम्स अ पॉइंट जब आपका कैलोरी डेफिसिट और ज्यादा नहीं हो सकता थ्रू डाइट, एंड दैट इज व्हेन एक्सरसाइज कम्स इनटू प्ले. It helps building more muscle, it helps you looking leaner and toned, and it helps bring a lot of joy and happiness once you start moving your body, और जब आपका स्टैमिना बढ़ने लगता है. I was someone who used to hate workout. Now I am someone who needs to work out at least 3 days of the week because that has become my habit. And I assure you कि अगर आप workout करेंगे किसी भी तरह का, it will be much more better for you for your journey in weight loss and maintenance. अगर आप सिर्फ डाइट पे डिपेंड रहोगे, मे बी आप वेट लॉस तो कर लोगे, बट आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी एंड फिट फील शायद ना करे, बिकॉज वेट लॉस के साथ बहुत ज्यादा मसल लॉस भी होगा जब आप मैक्रोज में थोड़ा बहुत डेप्रिवेशन करोगे तो. एंड मसल लॉस को रीगेन करने के लिए एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी है. नंबर 3, एक्सरसाइज तो मैंने किया ही किया है इन 7 सालों में, बट जो मेन चीज जिस पे मैंने फोकस किया है दैट इज वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रही है, because after losing a lot of weight I do have a lot of loose skin. Even today I have a lot of loose skin, पर उसको कई हद तक टोन डाउन करने में वेट ट्रेनिंग ने मेरी मदद की है. मेरी बॉडी में मसल बिल्डिंग होने की वजह से आई एम 55-56 kgs, but people assume that I am somewhere around 50-51 kgs because of the lean body that I achieved because of weight training. And कभी कभी ऐसा भी होता है दैट आई डोंट हैव टाइम, या कोई इंजरी हो गई है या कोई पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वर्कआउट महीनों तक नहीं कर पाती हूँ. आई डू कंटिन्यू टू वॉक, दो उसके बारे में हम नंबर 4 में बात करेंगे, बट स्टिल मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाती एंड मेरी बॉडी पे इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना तब पड़ता जब मैं सिर्फ डाइटिंग करती. तो तीसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये था कि वर्कआउट तो जरूरी है ही, पर उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है. Now weight training doesn't necessarily mean कि आप सिर्फ डंबल से वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. सो सूर्य नमस्कार, पिलाटीज, these are the things that if you enjoy are also equally good. एक्सरसाइज बॉडी वेट रेजिस्टेंस सिखाती है आपको, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. नंबर 4 which is very important is to increase your active to passive ratio.
आई एम समवन हु वर्क्स फ्रॉम होम, सो मेरा जो ऑफिस स्पेस ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं क्लाइंट कॉल्स करती हूँ, इस सेक्शन में वीडियोस बनाती हूँ, इस सेक्शन में मैं वर्कआउट करती हूँ, तो इट इज अ स्टूडियो कम ऑफिस स्पेस विच इज ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस. आई हैव 3 stories इन माई हाउस, इट इज माई पेरेंट्स हाउस. और मैं पूरे दिन ऊपर नीचे करती रहती हूँ, उसके साथ मैं वॉक करती हूँ, तो मेरा एक्टिव टू पैसिव रेशियो बहुत अच्छा है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग माई ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट एंड माई एक्टिविटी लेवल. मेरा हार्ट रेट इन चेक रहता है, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है बिकॉज आई एम मूविंग अ लॉट. And you also need to increase your active to passive ratio if you are someone who has a desk job, because what it does is आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है उसको वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप इजीली एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू लो ऑन ईटिंग द फूड दैट यू वांट टू ईट, right? So that is the fourth thing. I started moving more and that helped me in maintaining my health in the long run. In fact, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गई हुई थी, तो करीब 1-1.5 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्टेप्स चला था और उसके साथ 10-15 मिनट्स का मैं एब रूटीन करती थी. दैट्स अबाउट इट एंड स्टिल आई वाज एबल टू मेंटेन माय वेट. इनफैक्ट मैं 55 से 53 पे चली गई थी व्हेन आई वाज जस्ट वॉकिंग एंड ईटिंग क्लीन घर का खाना, घर का भी नहीं, हॉस्टल का खाना जिस तरीके का होता है वैसा खाना खाती थी और इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी. मैं दोनों टाइम रोटी और चावल खाती थी और मैं ब्रेकफास्ट में भी कार्ब्स खाती थी. So this is one thing that you need to also understand, that you don't need to leave carbs forever if you are on your weight loss journey. Maintenance के वक्त भी आप carbs खा सकते हैं, weight loss journey के वक्त भी आप carbs खा सकते हैं. Fifth thing that I learned is that motivation is overrated and you need to be disciplined in order to maintain your health. So मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से हमेशा अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती थी, बट धीरे धीरे क्योंकि वो इतना मोनोटोनस रूटीन बन जाता था तो मोटिवेशन रहता नहीं था और उसके बाद आई यूज्ड टू गिव अप. पर जो लास्ट फेज था मेरा 2015 का, जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी, तब आई डिसिप्लिन माई सेल्फ इन अ सर्टन वे कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के वॉक और रनिंग करनी ही करनी है. देन मुझे अपने डब्बे लेके जाने ही जाने हैं, मैं कैंटीन का खाना नहीं खाऊंगी या फिर वापस आके मुझे जिम जाना ही जाना है, बिकॉज आई वॉज टेकिंग पिलाटीज क्लासेस व्हेन आई वॉज लूजिंग वेट, बिकॉज आई वॉज टू कॉन्शियस अबाउट माई लूज स्किन. अगर आपको लूज स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए एंड मैं उसी हिसाब से आपके लिए उसका एक नया वीडियो लेके आ सकती हूँ इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट. तो मोटिवेशन इज ओवररेटेड, डिसिप्लिन योरसेल्फ. डिसिप्लिन ही है जो 2015 से 2022 तक मुझे अपनी हेल्थ जर्नी में हेल्प किया, जिसने टू मेंटेन माई सेल्फ. कभी कभी आई गो ऑफ ट्रैक, बट डिसिप्लिन इज द थिंग दैट ब्रिंग्स मी बैक कि नहीं, ये मेरा रूटीन था, आई कैन नॉट गिव अप ऑन माई रूटीन, आई वॉन्ट टू लीड अ बेटर एंड हेल्थियर लाइफ and this is what I need to do in order to achieve that. Sixth learning that was very helpful and I think will be very eye-opening for all of you is that you do not need to give up on the favorite foods of yours in order to lose the weight and maintain it. आज के टाइम पे I eat my biryani, I eat my nahari kulcha, I eat my pizza, I eat my cakes, I eat everything in moderation and I know when to stop. So portion control is very important, but do not think that you have to give up on your favorite foods forever just because you are on a health journey. Of course, you can eat everything in moderation, and that is what you have to learn during your weight loss journey and during your maintenance phase as well. Try to focus more on रियलिस्टिक अप्रोच. ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, क्लीन ईटिंग इंपॉर्टेंट है, बट उसको 80-20 का रेशियो रख सकते हो आप. 80% ऑफ द टाइम ट्राई टू ईट क्लीन एंड 20% ऑफ द टाइम ट्राई टू ईट एंजॉय वट एवर यू फील लाइक ईटिंग विदाउट एनी गिल्ट, बिकॉज गिल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसको जब आप गुड बाय कह दोगे बिकॉज यू नो दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर टंग एंड ओवर योर बॉडी एंड ओवर योर माइंड, it is going to be okay. You can have that slice of cake, you can have that pizza, you can have whatever you feel like, but you have to also understand that अगर वो खाया है तो सैलड भी खाना पड़ेगा. So moderation is key. That is what I learned in over 7 years. क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो आपके दिमाग में एक कैलोरी काउंटिंग हर वक्त चलने लगती है कि ओ माय गॉड आई एम ईटिंग दिस, मे बी आई विल गेन वेट. तुरंत जाके वेइंग स्केल पे हम वजन लेते हैं अपना इन ऑर्डर टू सी कि वजन तो नहीं बढ़ा. ऑफ कोर्स वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द वाटर वेट, बट वो वजन वापस भी नीचे चला जाएगा in 2-3 days if you continue your lifestyle the way it was. So one piece of cake is not going to mess up your lifestyle and mess up your health.
Just understand that, let go of that guilt, and you will be happy. And that made me happy as well. Seventh thing that I learned is that enjoy the process. Do not think that it is a punishment कि okay 8 महीने में कर लिया अब इसको बाय बाय करना है, तब वो कभी आपका डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा. अगर आपको एक रूटीन बनाना है अपने लिए जिसमें हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रोसेस को एंजॉय करना जरूर. इफ यू लाइक लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर द वे यू हैव transformed your body, then in order to maintain that body, in order to maintain and sustain that body, you need to just enjoy the process. इसको as a punishment मत लो कि आज ये करना पड़ रहा है बिकॉज आपने कल इतना ज़्यादा खा लिया था. Just be happy about it. Be proud that you have built for yourself a disciplined routine जिसको कोई टस से मस नहीं कर सकता. ये सिर्फ आपके कंट्रोल में है. जब आप इंजॉय करने लगेंगे इस प्रोसेस को तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती की हुई चीज़ परमानेंट नहीं रह सकती. So the last thing is that I enjoy eating a good plate of salad. I enjoy making meals a little healthier. अगर थोड़ा सा कम तेल इस्तेमाल करके या थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैं अपनी डिश को थोड़ा सा हेल्दी बना सकती हूँ, so why not? These are the things that I keep on inculcating in my life and my clients' lives as well. तो मैं कभी भी उनको किसी भी strict रूटीन में बांध के नहीं रखती. I give them room for their suggestions. मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपना फीडबैक दें and उस हिसाब से I build a plan for them. And that is what you should do for yourself as well. These are the 7 things, and I think इसका part 2 भी आ सकता है जितनी ज़्यादा learnings है मेरी after achieving my weight loss and sustaining on health. But एक last tip मैं आपको देना चाहूँगी if you are someone who is just starting out कि temptations बहुत होंगे. आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा वेट लूज करना है and you want to be a size 0, you want to be a extra small or 24-inch waist, and not everyone can achieve that. So always try to do the best you can. ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोस्त अगर 24 इंच की जीन्स पहनती है तो आपको भी 24 साइज की जीन्स पहननी है. Just try to be the healthiest version of yourself year after year. There is no race, no comparison. Do not compare your body with someone else's body. You don't know their genetics, you don't know their body type, you don't know their metabolism. What you know is your body. If you love your body enough, you'll never compare it with anyone else. Compare yourself with the previous version of yourself and you will be fine. This was a little motivation video for all of you because beginning of the year हम सब नए resolutions लेते हैं and मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ कि nutrition, science and everything is very important, but these are the things that I have accumulated over a period of 7 years of my weight loss journey and maintenance journey. I hope ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा insightful रहा होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो इसका कंटेंट पसंद आया, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव. यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो व्हाट अदर वीडियोस यू वुड लाइक टू सी ऑन माय चैनल ऑन हेल्थ एंड वेलनेस. And yeah, I'll see you guys in my next one. Until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.